So it means no means out of other countries. Means क्या हो सकता है? What can be the meaning? Tell me. So it means that कोई भी अलग नहीं होता. sir, all peoples are same by religion, country. Is it really true? आपको क्या लगता No, है? sir. Are there foreign people? क्या दुनिया में Yes, sir. दुनिया में Yes, foreigners sir. होते हैं? Yes, sir. कैसे होते हैं? Yes, sir. No men are foreign means there is nobody foreigner. There is nobody who is from another country. There is nobody who can be considered outsider. Outsider का मतलब क्या होता है? जो हमारा अपना नहीं है. ऐसा कुछ हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. How can you say that? See this first is it says कि have you ever thought of some people are strange कुछ लोग आपको strange लगते हैं other countries as foreigner you don't consider them your own or you consider them foreigners we have many ways of thinking of other people as different from us as them हम बहुत सारे तरीके से हम किसी को अपने से अलग मानते हैं they may belong to a different country मतलब हम कह सकते हैं ये विदेशी है और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज हम कह सकते हैं ये बंगाली है ये हरियाणवी नहीं है ठीक है so in this poem however the poet reminds us of many ways in which we are all the same for we are all human वो कहता है कि हम सभी सेम है लैंग्वेज हो पहनावा हो ओरिजिन का मतलब होता है हम जहां से होते हैं वी आर आवर ओरिजिन क्या है इंडिया है तो वी आर फ्रॉम इंडिया तो पीपल थिंक अबाउट अदर पीपल लोग दूसरे लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि वो लोग तो फॉरेनर्स हैं वो अलग हैं वो स्ट्रेंज हैं वो हमसे अलग हैं तो यही वो चीज़ है कि क्या सच में ऐसा होता है सच में हमें सोचना चाहिए कि लोग ऐसे हैं ठीक है आप किस वे में कह सकते हैं कि लोग ऐसे नहीं हैं कोई कह सकता है आप में से सर लॉर्ड अलग नहीं है सर मतलब the countries and the religions are made it by humans they are कंट्री अलग हो जाए कंट्री के अलग होने से लोग अलग हो जाते हैं yes sir No, sir. No, sir. ह्यूमन बीइंग्स तो वो फिर भी रहते हैं still even if they are from any other culture any other country we are from Haryana so we can say we are Haryanvi there are people from Punjab also they are called Punjabis so are they strange or different from us No, sir. no sir this poem it talks about humanity this poem talks about humanity what do you mean by humanity what do you mean by humanity sir व्यक्तित्व इंसानियत. yeah इंसानियत. we think that only human beings are there we do not talk about their origin we do not talk about their religion do you find that there are some people who fight for their religion fight for their caste fight for their country state yes sir Yes, sir. this poem will teach us that we should not consider anybody strange we should think that all are same actually same let us read who will read it Sir, may I? sir may I Sir, may I? sir may I Sir, may I? Shivam Jakhar Keshav Chahal are you want to speak yes sir Anvi are you there sir married sir Keshav sir read it bete remember no man are strange no countries wait Keshav there is disturbance behind you when you speak there is lot of disturbance आप ऐसी जगह पे नहीं बैठे हैं जहाँ पीछे से शोर नहीं आए so there is lot of noise Sir, may I? sir may I Sir, may I? Sir, Yes, may I? May I? yes, पता तो नहीं चलता ना कौन में आए बोल रहा है Sir, Mannat. Sir, Shivam Jakhar. Sir, Ankita. अंकिता पढ़ेगी करो Remember, no mean are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we shall lie. फर्स्ट थिंग एक जो पोएम होती है उसमें एक राइमिंग स्कीम होती है राइमिंग स्कीम
Yes, sir. sir. Yes, sir. So do you Yes, find some rhyme scheme here? Do you find Yes, any sir. rhyme? A B Yes, C sir. D. क्या rhyme है बताओ? No rhyme, sir. बताओ कुछ है तो बताओ मुझे, इसमें no rhyme Sir, है। foreign and upon. Walk upon. तो upon और foreign तो नहीं बना ना, foreign is different, upon is different, दोनों अलग अलग Yes, साउंड sir. अलग है, नहीं मिले। Walk upon. वॉल्क नहीं होता, वॉक होता है, वॉक। Walk upon. What does the poet say here? देखो वो कहता है याद रखो, remember no men are strange, no country is foreign। कोई भी आदमी जिसे हम ये कहें कि कंट्री दूसरी कंट्री से है, ना तो किसी कंट्री दूसरी कंट्री का आदमी स्ट्रेंज होता है, ना फॉरेन होता है, और ना वो किसी भी वे में स्ट्रेंज होता है। Beneath all uniforms, क्योंकि यूनिफॉर्म अलग अलग हो सकती हैं लोगों की, हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, कपड़े अलग हो Yes, सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Body breathes, सबके कपड़ों के नीचे एक बॉडी सांस लेती है, ब्रीद करती है कि नहीं करती है? इट इज Yes, सेम sir. Yes, Yes, sir. sir. फॉर ऑल। केशव आप स्पीकर ऑन मत करो। इट इज सेम फॉर ऑल। लाइक आर्ट्स, जैसे हम करते हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। हमारे आवर ब्रदर्स कौन? जिनको हम अलग मानते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और इन द नेम ऑफ कल्चर, इन द नेम ऑफ कंट्री, जिनको हम अलग मानते हैं। दे ऑल्सो वॉक अपॉन अर्थ लाइक अस, हम हमारी तरह। इन विच वी ऑल शेल लाई, और हम ऐसे ही लेटते हैं जैसे हम, जिस धरती पे हम लेटते सोते हैं उसी धरती पे वो भी लेटते सोते हैं। तो देयर इज नो चेंज। व्हाट इज द चेंज हियर? कुछ है ही नहीं जिससे हम ये कहेंगे कि देयर इज सम चेंज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, Yes, लेट्स sir. मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। लेट अस मूव टू द next stanza. So may I read? Yes. Sir, may I read? Sir, may I? Yes. They They too, too, aware of the sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winters starved. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. Wait. दे कौन? दे का मतलब कौन है? किसकी बात कर रहा है वो? So peoples, sir, please. Peoples that are who are on different. earth. Humans. केशव आप स्पीकर Foreigners. ऑन करो बेटे। Sir, we need मैं कह रहा हूँ दे का मतलब क्या है? Those people whom we consider strange. दे मतलब वो लोग जिनको हम अलग मानते हैं अपने से। अब आप हो सकता है किसी न किसी को on one pretext or the other आप समझते हो कि वो आपसे अलग है, तो दे में सब आ गए जिनको हम अलग मानते हैं। टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर वाटर, सभी को क्या चाहिए होता है? Air, क्या चाहिए water, होता है? एयर चाहिए, ठीक है, सन चाहिए, water. और वाटर ऑल्सो लाइक वी डू, दे वांट वाटर ऑल्सो, उनको भी वाटर चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनमें कुछ अलग है, ठीक है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। ये पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब क्या है भाई? जो किसान है, जो है, खेती है, उसी से वो भी तो उसी खेती से जो है खाते हैं पीते हैं, जैसे हम खेती करके खाते हैं, ठीक है। और वो भी Yes, sir. वर्ड्स लॉन्ग्स हार्वेस्ट, क्या लिखा हुआ? बाय वर्ड्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। अब अगर वॉर हो जाए, जो कुछ भी समस्या आ जाए तो क्या होगा भाई? वो भी तो परेशानी में आते होंगे, वो भी तकलीफ में आते हैं। स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना, वो भी तो भूखे मरते हैं, उनको भी भूख लगती है। देयर हैंड्स आर आर्ट्स, उनके हाथ भी हमारे तरह हैं। देयर हैंड्स आर आर्ट्स का मतलब क्या है? उनके हाथ भी हमारी तरह हैं। इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस आवर टाउन। मतलब उनका वो जो लेबर करते हैं वो भी हमारी तरह है, वो भी अलग नहीं है बिल्कुल। दैट इज नॉट डिफरेंट, दैट इज नॉट डिफरेंट, मतलब हमारी तरह ही है। वो यही चीज कहना चाहता है कि दे गेट द क्रॉप एंड द ईटेबल्स फ्रॉम द फील्ड्स एज वी डू। खेतों से उनको मिलता है सब कुछ जैसे हमें मिलता है, और वो उनको भी पीस पसंद है। दे लाइक पीस एज वी डू। ड्यूरिंग वॉर, जब वॉर हो जाती है, ये कहता है ना कि द वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। ड्यूरिंग वॉर क्या होता है कि दे ऑल्सो फेस स्टारवेशन, दे ऑल्सो डाई ऑफ हंगर। भूख से वो भी मरते हैं। अगर जहां अगर हमारे यहाँ वॉर हो जाए तो हमारे यहाँ पे लोग भूख से मरेंगे, वहां हो जाएगा तो वहां पे भी मरेंगे,
ठीक है, कोई ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस है ही नहीं. सो देयर इज नथिंग लाइक फॉरेनर्स बिकॉज ऑल द ह्यूमन थिंग्स, ऑल द ह्यूमंस आर सेम एंड दे डू द सेम एक्टिविटीज, सेम काम करते हैं, बिल्कुल इकट्ठे ही रहते हैं एक तरीके से. दे यूज देयर पावर्स ऑफ हैंड्स टू गेट द थिंग्स डन. हाथों को, वो भी हाथों को यूज करते हैं, लेबर करते हैं, हम भी यूज करते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो ट्रबल, देयर इज नो प्रॉब्लम. चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा कौन पढ़ेगा? मन्नत पढ़ेगी. Sir, may I? Sir, may I? Sir, Manat, Sir, Manat. हाँ पढ़ो. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. वेट, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स. क्या उनकी आंखें हमारी आंखों से अलग हैं? No, No, sir. बिल्कुल भी नहीं है. देयर आईज आर, हमारी तरह आंखें हैं उनकी, दैट मेक, Just like us. दैट वेक, जो जागती हैं यानी देखती हैं, और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. उनके अंदर भी स्ट्रेंथ है. कौन सी स्ट्रेंथ है? दैट कैन बी वन बाय लव. इन एवरी लैंड, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ. लाइफ कॉमन होती है, कहीं भी चले जाएं आप, कोई भी लैंड हो. लैंड तो मतलब धरती तो एक ही है वैसे देखा जाए तो. कहने का मतलब यहाँ पे एवरी लैंड से मतलब होता है एवरी कंट्री. सबके यहाँ कॉमन लाइफ है, कॉमनली लोग रहते हैं, खाते हैं, सबके काम कॉमन होते हैं. ठीक है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. सभी लोग एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, यानी सबकी जिंदगी एक जैसी है. फिर भी हम ये कहते हैं कि ये अलग देश का है, ये हमसे अलग है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए. पीपल, अगर हम कहें कि अ पर्सन हु हैज टेकन शेल्टर इन आवर कंट्री, हमारे देश में आया है, उसे भाग जाना चाहिए. व्हेन वी गो टू अनदर कंट्री, वहाँ भी लोग सोचते हैं कि ये विदेशी कहाँ से आ गए, दे मस्ट गो फ्रॉम हियर, इनको यहाँ से चले जाना चाहिए. सो देयर आर सो मेनी वेज एक्चुअली. चलिए थर्ड पे, नेक्स्ट पे चलते हैं. हु विल रीड? Sir, may I? हाँ पढ़ो. हाँ यस यस, गो अहेड. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is, sir, आपका पेन अड़ा हुआ. Math. Ourselves that we shall depossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. कहता है कि हमें याद रखना चाहिए, लेट्स रिमेम्बर, कि whenever we are told, हमें जब भी सिखाया जाता है, बताया जाता है ना. कई बार किसी के घर में सिखाया जाता हो, पड़ोसी सिखाए, दोस्त सिखाए, क्या सिखाया जाता है? हेट आवर ब्रदर्स, यानी सब हमारे भाई हैं, सभी ब्रदर्स हैं. हमें नफरत करना सिखाया जाए, कोई नफरत करना सिखाए, किसी को छोटा बताए, किसी को हमारे सामने घटिया बताए. मीन्स वी आर टोल्ड, वी आर टॉट दैट दिस पर्सन इज नॉट गुड, दैट पर्सन इज नॉट गुड. Whenever we are, इसका मतलब क्या है? That person is teaching us to hate. वो हमें hate करना सिखा रहा है. ठीक है. So we shall deposit. हमें क्या करना चाहिए? हमें betray करना है, condemn करना है, हमें उन चीजों को नहीं मानना है. ठीक है. condemn करना होता है उसकी तो उसको criticize करना, उसको गलत कहना, उसको सही नहीं बताया. ठीक है. हमें उसको मानना नहीं है. We who take arms against each other. वो कहता है कि हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं? आर्म्स उठाते हैं. आर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पे? आर्म्स का मतलब हथियार होते हैं. हम ही हथियार उठाते हैं, हमारे ही खिलाफ हथियार उठाते हैं. we raise arms, we take arms against us, है ना. यानी इंसान के खिलाफ, ह्यूमन बीइंग्स रेज आर्म्स अगेंस्ट ह्यूमन रेस. इंसान को ही मारता है, वही जाता है. हमें याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट, इट्स द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. वो आगे डिफाइल का मतलब होता है पॉल्यूट करना, खराब करना. डिफाइल का मतलब होता है गंदगी फैलाना. इट्स आवर ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. ये हमारी ह्यूमन अर्थ ही है, इंसानों की अर्थ ही है जिसे हम गंदा करते हैं. कैसे गंदा करते हैं? प्रदूषण से नहीं करते हैं, पॉल्यूशन. हम यहाँ पे नफरत फैलाते हैं, है ना. वी फाइट विद ईच अदर. तो वो नहीं होना चाहिए. डिफाइल का मतलब खराब करना. इट्स द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस. आवर हेल्स ऑफ फायर का मतलब होता है हमारे अंदर की जो हेट्रेड है, नफरत है, ठीक है, गंदगी है, वो क्या करती है? आउटरेज का मतलब होता है, आउटरेज, आगे देखो, आउटरेज का मतलब होता है ओवरकम कर जाना. ओवरकम से मतलब उभर जाना.
द इनोसेंस ऑफ एयर, यानी हमारे अंदर का बुरा इंसान हमारे अंदर के अच्छे इंसान को मार देता है। हेल्स ऑफ फायर या डस्ट का मतलब क्या है? हेट्रेड और हमारे बुरे विचार किसके ऊपर हावी हो जाते हैं? हमारी इनोसेंस यानी हमारी अच्छाई के ऊपर, ऑन आवर गुडनेस। ठीक है, इनोसेंस ऑफ एयर, एंड दैट इज एवरीवेयर ऑफ आवर टाउन ऑफ आवर ओन, और ये हमेशा होता है। रिमेंबर, आगे भी कहता है कि नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज, कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है, वी मस्ट रिमेंबर दैट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर हो गया? सर हाँ बेटे। एक्सक्यूज मी सर, Yes, sir. सर यहाँ पे सर कंट्रीज और स्ट्रेंज के बीच में आर नहीं आना चाहिए था। बेटे ये नो पोएम है, कंट्रीज आर स्ट्रेंज। इट इज अ पोएम। समटाइम्स व्हेन वी मेक अ राइमिंग स्कीम या एक लय जब हम देते हैं एक पोएम के अंदर, जब एक तरीके से हम जिसको हम क्या कहते हैं मेलोडियस उसको बनाने के लिए व्हाट वी डू, वी मे रिमूव सर्टेन वर्ड्स, इसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। क्या बोलते हैं? पोएटिक लाइसेंस। उसमें पोएटिक लाइसेंस, उसमें क्या करता है पोएट? किसी भी वर्ड को उड़ा देता है ताकि वो वर्ड्स जो है एक तरीके से लय में आ जाए। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This was the poem written by James Kirkup. जैसे आप याद रखेंगे, you will remember this. इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आप, इसको रीड करें एक बार। क्या लिखा है? Beneath all Beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? कौन सी यूनिफॉर्म से जिनकी वो बात कर रहा है? बताएं। यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब होता है कपड़ों की बात नहीं हो Please show रही the है, poem once. फिर भी मान लेते हैं, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब होता है डिफरेंट कास्ट, ठीक है, रिलीजन, मतलब कोई कहता है मैं इस धर्म का हूँ, कोई कहता है मैं उस धर्म का हूँ, ठीक है। क्रीड होता है रेस, कोई कहता है हमारी रेस बड़ी बढ़िया है जी, हमारी नस्ल बड़ी बढ़िया है, ठीक है। बहुत सारे हो जाते हैं। ओरिजिन भी हो सकता है, ओरिजिन, कोई अपने आप को पाकिस्तानी कह के श्रेष्ठ कहता है, कोई हिंदुस्तानी या कोई जर्मन या फिर कोई अमेरिकन, है ना। कपड़े पहने हुए एक अलग तरह की जो ना पहचान है उनकी, कोई कास्ट के नाम से है, कोई रिलीजन, क्रीड, Religion के creed. लेकिन इन सब Sir, के, what is creed? हाँ, क्रीड का मतलब होता है रेस, नस्ल। अब इन सब के नीचे पता है क्या होता है? ह्यूमन बॉडी होती है, ये तो उसने बताया है। सबके नीचे क्या है? Human body. Human body. क्या करती है? सांस लेती है, ठीक है। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम? कैसे कहता है कि वो सभी लोग जो ना अर्थ के ऊपर सेम है? Sir, That all are humans, all walk on the so same they are earth. all like humans. They have hands like us. Their eyes also sleep, also work like us. And ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ऑल हैव, क्या है? सेम बॉडी है, same body, ठीक है, और क्या है? सेम हमारी नीड्स हैं, same सेम names. हमारे रिसोर्सेस हैं। समझ गए? जिनसे हम Yes, sir. खाते Yes, हैं, sir. आगे बढ़ते हैं, जिंदा रहते हैं, सब सेम है Yes, एक्चुअली। sir. हमारी एक्टिविटीज Yes, सेम ही है। ऐसा थोड़ा है कि पाकिस्तानी या अमेरिकन या जर्मन या इंडियंस खाना नहीं खाते, बिना खाने के तो कोई जिंदा नहीं रहता ना। और No, जो sir. एक्टिविटीज सारी उनकी जो एक्टिविटीज है वो भी सेम होती हैं जिंदा रहने के लिए, सबकी एक्टिविटीज सेम है। सबको लैंग्वेज की Yes, sir. जरूरत पड़ती है, ऑल हैव टू स्पीक, भले ही लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। सबको पहनना पड़ता है लेकिन कपड़े डिफरेंट हो सकते हैं। सबको खाना पड़ता है लेकिन खाना डिफरेंट हो सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि एक्टिविटीज, नीड्स, रिसोर्सेज, बॉडी सब सेम है। ऑल हैव टू टेक ब्रेथ। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा है? इन स्टेंजा 1 फाइंड 5 ways in which we all are alike, pick out the words। निकाल लेंगे आप 5 चीजें? Yes, sir. Sir, कौन सा क्वेश्चन Yes. कह रहे हो? सेकंड क्वेश्चन,
दिस इज 5 चीजें निकालनी है, Okay, sir. पता चले कि हम सब सेम है। फाइव सिमिलैरिटीज, कैन यू Okay, sir. आउट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. थर्ड है हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2? स्टैंजा 2 में कितने कॉमन फीचर फाइंड आउट कर सकते हैं आप स्टैंजा 2 के अंदर? Two. कॉमन फैक्टर्स, Sir, we don't find. लाइनें निकालनी है। Given in the scene. वो तो they too are aware of sun and air and water. Strive during winter season. Hands are like arts, मतलब Made by peaceful harvest. बिल्कुल। बेटे कौन बोल रहा है ये? पूरी क्लास को खराब कर देते हो। पिक आउट द वर्ड्स, निकालने इसमें से। थर्ड स्टैंजा। फोर्थ है whenever we are told to hate our brothers, जब भी हमें कहा जाता है अपने भाइयों से नफरत करें, मतलब हमें कोई बुरी बात सिखाता है। When do you think this happens? कब होता है? Why? क्यों होता है? Who tells? कौन बताता है? Should we do as we are told at such times? क्या जैसा कहा जाता है, सुनाया जाता है, हमें करना चाहिए? Why does the poet say? यानी क्वेश्चन नंबर 4 डिपेंड करता है बेटे आपकी अपनी सोच के ऊपर, ऑन योर थिंकिंग एंड योर अंडरस्टैंडिंग। Way of thinking. समझ गए? तो इसका आप आंसर देंगे किसे Okay, sir. जाते हैं? Sir, will you sending again? नो बेटे, दिस क्लास इज ओवर, दिस पोएम इज आल्सो ओवर एक्चुअली। क्लियर? तो सर ये तो था ना Sir, हमारी what is the- फेसबुक में तुमने यस बेटे। सर ये तो था ना हमारी फेसबुक नोटबुक में है ना। बिल्कुल फेयर नोटबुक में करने हैं एंड आई विल सेंड सम मोर क्वेश्चंस टू डू इन योर फेयर नोटबुक। Sir, what is the आप पे तो Okay, sir. हम नहीं करते। हां बेटे, सर आप इनके बेटे आंसर मैंने बता दिया। आई हैव टॉट यू द पोएम। आपको पोएम पढ़ा दिया ना मैंने, तो Yes, आंसर sir. आपके पास। आपको यू यस सर तो आंसर्स ऑन योर ओन। फाइन। एनी Okay, अदर yes, sir. क्वेश्चन somebody was asking? Sir, what is the means of that line that is written under the question answers? Which question? Sir, Sir, this I I am am a citizen the not citizen of only. Athens or Greece but of the world. कहाँ पे? In which stanza? Sir, sir, Yes, below the तो question. Which question? Sir, below I the am question a there is a citizen. line. Yes, sir. There is Yes, a sir. line in which stanza? सर सबसे नीचे लास्ट में। Last. Sir, एक बार questions वाला पेज खोलो सर, questions के नीचे है। This one, ये वाला है, इस last stanza में कह रहे हो? Sir, below the question answers. Next page. Below the question number 4. At the end. This one, Yes, sir. Yes, sir. this one. Yes, sir. I am a Yes, sir. citizen. It's a thought बेटे। ये सुकरात एक बहुत बड़े जो ना जिसको हम फिलोसोफर कह सकते हैं, he was a philosopher, जिसको हम दार्शनिक भी कहते हैं। He was a great personality. इसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, इंग्लिश में सोक्रेट्स बोल देते हैं। जैसे हमारे बड़े महान लोग हुए, ऐसे ये हुए हैं। ये कहता है कि आई एम ए सिटीजन नॉट ऑफ एथेंस ऑफ ग्रीस बट ऑफ वर्ल्ड। वो कहता है कि मैं नागरिक हूँ, एथेंस का नहीं हूँ और ना ही ग्रीस का हूँ। ठीक है, क्योंकि ग्रीस शायद ग्रीस से थे ये। Yes. जैसे आप ये कहें कि मैं कोई हरियाणा या फिर इंडिया का या फिर सिटीजन नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का सिटीजन हूँ। तो कहता है मैं सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो कहता है कि होल वर्ल्ड इज अ कंट्री। लोगों को आपस में बंटना नहीं चाहिए। पीपल शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। क्लियर हो गया? Yes, sir. Sir. एक लाइन में हम कह सकते हैं कि द थीम ऑफ द पोएम इज क्लियर और द मैसेज ऑफ द पोएम इज क्लियर। क्लियर? तो दिस इज द पोएम डू इन योर नोटबुक। इसमें एक दो आपको वो भी मिलेंगे, पोएटिक डिवाइसेस भी मिलेंगे। कौन से? इसमें एक जगह मिलेगा आपको, देखो था कहीं पे, ये रहा लाइक दिस। लाइक कहाँ यूज करते हैं? कंपैरिजन में। इसको हम यहाँ पे बोलेंगे सिमिली। Simile. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिमिली। Simile. ठीक है, सम मोर यू विल फाइंड। ढूंढने की कोशिश करना।
After this class will be over after 20 seconds or 30 seconds. Over होने के बाद में the class, consider the class is over. We will have next class tomorrow. Fine. Okay, sir. Bye, sir. Sir, Okay. then what's the topic for tomorrow? For tomorrow I will tell you. We will do Bye, sir. next poem we will discuss. The duck and the kangaroo. This poem will be discussed tomorrow. So you all be prepared.